Hello, hi Abhishek. Welcome to our studio. And today, I'm very happy to Thank host you. you for our Thank you. event. So I just wanted to interact with you and share some information with our audiences and to actually know more about UX design, how you made your career into it, and it will be great if you can you can share your experiences by yourself itself. You have around 6-7 years of experience into UX. So मैं मेरे बताने से अच्छा I think if you could share some light into that so that we all can know about it. Right. So Gaurav, basically, like when I was doing my schooling, so I have done my complete education from Kendriya Vidyalaya. Okay. Since my family background is of military, so like sometimes in Jaipur, sometimes in Acha. Punjab, sometimes in at different locations of India. So when I was in my school, so I was like all of these sports cars, Jaguar, Jaguar, ये सब कुछ बहुत fascinating लगता था मुझे. Okay. So I was planning to make my career into automobile, Acha. Okay. but somehow I landed up in computer science. All right. एंड अगर आपको पता हो तो 11th-12th में केवी सीबीएसई में कंप्यूटर साइंस C++ का एक सब्जेक्ट होता है. Exactly. And I was very good in that. And I still remember the name of that teacher, Ramesh Kumar sir. He was basically from Himachal but posted in Rajasthan. And he was the teacher and उन्होंने बहुत इतना अच्छे से पढ़ाया था. And कि मैं when I went into the college, तो मैं फर्स्ट ईयर में जो जैसे यू हैव ऑल्सो डन इंजीनियरिंग, राइट? जो ये होता है कोड निंजा क्या हो, कोडिंग इवेंट्स होते हैं, कोडिंग इवेंट जो होते हैं, राइट? उसमें मैंने 4th ईयर तक के सीनियर्स को हरा दिया था. आई वाज सो गुड इनटू दैट. सो देन आई started developing interest into computer science, and then I started learning computer science. But then I realized when I was in first year तो C++ थी. second year तक मतलब जितना जो कुछ भी syllabus था, I was aware about that even more than my seniors. Okay. But when I entered into third year, तो third year के बाद में engineering में हमारे 2-3 महीने की internship थी. So internship तो मिली नहीं, tier 2 college था. So and that time, so I got an opportunity to pursue a UX design certification course that was of 21 days in a kind of workshop mode. Okay. 21 दिन का रोज 6 घंटे पढ़ो, कुछ एक्टिविटीज करो. इट वाज अ रैंडम काइंड ऑफ थिंग दैट केम अप. रैंडम क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज की तरफ से आया था कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही, ये कर लो, इसके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में लग जाएगा तो तुम्हारी डिग्री में सपोर्ट हो जाएगा. जो जुगाड़ ऑब्वियसली. तो ऐसा कुछ था पहले से इंटरेस्ट डिजाइन में? नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि यूएक्स क्या होता है. अच्छा. And just out of curiosity. Yes, obviously. जो placement officer, जो HOD वगैरह थे, सबने everybody was informing us, saying us कि जिनकी internship नहीं लग रही, इतने bright student तो थे भी नहीं कि कोई भी company लेके जाए, पैसा दे, internship करवाए. Even free में भी कोई नहीं लेके जा रहा था. सिर्फ programming आती थी. I was very weak in hardware subjects. Okay. जैसे जो electronics related जो computer science में आते हैं. And then I started doing that workshop of 21 days, and it was an amazing experience. I got to know a lot of things about industries, about customers, and even the mentors जो थे वो भी बहुत experienced थे, and उनका भी बहुत I would say कि मतलब ये good teachers, good mentors, good experienced personals. So yes. So आपने मतलब relate कैसे किया? एक you are coming from a technical background. आप कोडिंग वगैरह के बैकग्राउंड से आ रहे हो और दिस इज कम्प्लीटली डिजाइन, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आए, लाइक हाउ वो समझ में आना, वो कनेक्शन बिल्ड करना एंड ऑल? नहीं, बेसिकली यूएक्स इज नॉट 100% डिजाइन, यू कैन से. जैसे फैशन डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइन है, दैट इज 100% टिपिकल डिजाइन, कन्वेंशनल डिजाइन. ऑब्वियसली उनको कन्वेंशनल डिजाइन सब्जेक्ट्स में बोलते हैं, बट यूएक्स डिजाइन वो नहीं है. यूएक्स डिजाइन इज काइंड ऑफ ए मॉडर्न डिजाइन सब्जेक्ट, और यू कैन से मतलब कि इट इट कवर्स काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रीज. Okay, so it's all about user experience of any product. It covers technologies also, you're saying, like. Right, obviously, क्योंकि आजकल जैसे आप देखो तो आजकल चाहे आप स्टार्टअप के फाउंडर हो, चाहे अंबानी जैसे कोई इंसान है जो कि नया स्टार्टअप कर रहा है, दे जनरली हायर यूएक्स डिजाइनर्स बिफोर दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट. Okay. क्योंकि जब आप यूएक्स पढ़ते हो तो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजाइन, ऑब्वियसली यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टेक पार्ट
नॉट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग या बहुत ही टेक्निकल, बट टेक का मतलब यूएक्स में ये होता है कि जैसे अगर आप यूएक्स डिजाइनर हो, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। फिजिबिलिटी ऑब्वियसली, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड बिजनेस फिजिबिलिटी, ये दोनों स्ट्रीम्स आप उसमें पढ़ते हो। इवन एक अगर आप कोई भी कोर्स करोगे यूएक्स का, उसमें एक अलग से चैप्टर आता है, एक सब्जेक्ट आता है बिजनेस एंड यूएक्स। Okay, amazing. So it is not completely into 110% design. So it helps you to connect between the you can say technological part plus the business aspects and everything, right? Right. मतलब kind of you can say in short, if I give you a one-liner about this UX, then we can say like as a UX designer, I improve or I enhance or I create the experience of a product or maybe of a service for the customers by ensuring that this UX, all of the things which I am providing as a UX designer are technically feasible plus are also feasible from the business point of view. So Abhishek, that was the technical parts and anything. अगर मैं एक simple, जैसे मान लो कि मैं एक layman हूँ, I don't understand, I don't know about technology and anything, और मुझे इतनी knowledge नहीं है, I am from a kind of village or like kind of tier 3 city or something. So मेरे लिए UX अंडरस्टैंड करने के लिए आप कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक आवर डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड एनीथिंग, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी एल्स कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली एक तो UX की द बेस्ट पार्ट व्हिच आई लव अबाउट UX एंड व्हिच आई एम श्योर कि एनी एजुकेटर हु इज इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया दे लव अबाउट इट, कि इसमें आपको किसी भी तरह का, जैसे आप 12th पास हो तो भी आप कर सकते हो, आपने बीकॉम किया तो भी आप कर सकते हो, आपने MBBS किया तो भी कर सकते हो। यस, डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अगर एक हायर लेवल से देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री सेगमेंट होता है, टेलीकॉम हो गया, फाइनेंस हो गया, मतलब रिटेल हो गया, एंड BFSI हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, IT इंडस्ट्री होगी, हर तरह की इंडस्ट्री में UX डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड एंड इवन few of them are also working in that. Few of the UX designers are already working. क्योंकि मतलब कि UX डिजाइनर को जब मैं कोई भी मुझसे पूछता है कि UX इतना जरूरी क्यों है, मैं उनको ये बताता हूँ कि जैसे आप आज कोई भी इंडस्ट्री सेगमेंट देखिए, इवन इफ यू लुक एट एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेगमेंट, इफ like food tech में there are a lot of options now. Zomato, Swiggy, Eat Sure, Vayu is the Sunil Sethi brand is there, and few others are also there, but not such big players. But again, people order, and all of them have the same list of restaurants with the same pricing. एक ही रेस्टोरेंट में 2-3 कर रखे हैं, नहीं मतलब जो आपको जोमेटो पे मिलेगा तो स्विगी पे भी मिलेगा, वो ईट श्योर पे भी मिलेगा, और जो बड़े ब्रांड्स है जैसे कि डोमिनोज टाइप, KFC, उनका तो खुद का भी ऐप है, राइट। बट आप देखो तो उनमें एक ही डिफरेंस है, वो है द एक्सपीरियंस विच दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स। ओके, सो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं नया पुणे शिफ्ट हुआ था, पहले मैं कुछ टाइम मुंबई भी था, तो जैसे मैं जोमेटो से ऑर्डर करता था उससे पहले, बट मैं ट्रेन में आ रहा था, मुझे कहीं भी मतलब कि मुझे मतलब वो स्टेशन का खाना नहीं खाना था, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो आई ट्राइड ऑर्डरिंग यूजिंग जोमेटो, बट जोमेटो बोलता है कि हम आपको स्टेशन पे नहीं देंगे क्योंकि ट्रेन लेट है, ट्रेन जल्दी आई है, कुछ भी है। तो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप डोमिनोज की ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपका PNR डालो, एंड दे विल डिलीवर योर ऑर्डर एट योर सीट। यस, I've also heard about this. What is this? This is UX, right? Right. This is what is the differentiator? Domino's भी उतने ही पैसे लेगा, Zomato भी, Swiggy भी. The differentiator is the experience which they are giving. The customer is getting, exactly. And if you, as a brand owner or as a you can say as a stakeholder of a product, if you give the best or different experience to the customer, जो कि उनके problem solve करता है, if that experience give them the ease of ordering or using your product, तो ऑब्वियसली कस्टमर को तो आप रिटेन कर ही पाए। डेफिनेटली, इफ आई गेट अ बेस्ट एक्सपीरियंस व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, आई विल ऑलवेज यूज इट, ऑब्वियसली, और मैं दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को भी रिकमेंड करूंगा, राइट। ऑलराइट, फाइन। सो अभिषेक, अब UX तो जनरली बाहर से आया, राइट, इन इंडिया, इट्स फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम US, राइट। सो इंडिया में इसका क्या स्कोप, एंड एज
इंडियंस लाइक हम कितना ग्रो कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है? इवन सी एवरीबडी वांट्स अ गुड जॉब, everybody wants to be successful in their career, so why like should we choose UX and how soon we can grow into it? तो गौरव, वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा UX इंडिया में ही है। अच्छा बट वो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। मतलब जब आप देखो कि आप किसी पंसारी की दुकान पे जाओ, किसी किराना की दुकान पे जाओ, आपको कितना अच्छा वो एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट, एज ए बैचलर हो, रेगुलर कस्टमर हो, तो आपके उधारी भी लिख लेते हैं, राइट। सेम विद टपरी वाले जो हैं, राइट, वो बेस्ट यूएक्स है इंडिया में। बट ये हुआ क्या है कि जब 1950-70s के लगभग बीई यूएक्स था, बट वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में था। तो इस सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था कस्टमर डिलाइट। बट उस टाइम पे लोगों ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। कस्टमर डिलाइट इज अगेन, अगर उसको थोड़ा सा हम वर्ड चेंज करेंगे तो वो यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस ही बनता है, राइट। लोगों ने उस टाइम पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे इतने बिजनेसेस थे नहीं, इतना कंपटीशन नहीं था। तो मतलब आप कैसी भी सर्विस दो, आपका प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है। बट समवेयर अराउंड जब 2000 शुरू होने लगा था, उस टाइम पे जब से इंटरनेट आया और ग्लोबलाइजेशन भी आया, इंडिया में भी आया, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में आया। उसके बाद में एप्पल के चीफ डिजाइन ऑफिसर थे डॉन नॉर्मन, उन्होंने इसको पूरा फॉर्मलाइज किया। दे मेड इट लाइक ए सब्जेक्ट, छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग जगह से उठा के इसको पूरा फॉर्मलाइज कर दिया। राइट। जैसे अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हो सकता है पुराने जमाने में वो मिक्स हो, कुछ फिजिक्स के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हो, केमिस्ट्री के फिजिक्स में हो, बट उनको फिर फॉर्मलाइज किया जाता है कि फिजिक्स ये सेट ऑफ जो चैप्टर्स हैं दैट इज फिजिक्स, ये सेट ऑफ चैप्टर्स दैट इज केमिस्ट्री। सो दे डिफरेंशिएटेड यूएक्स फ्रॉम द डिजाइनिंग, राइट, फ्रॉम डिजाइन, फ्रॉम जो, और उन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था जो आईफोन 3GS आया था उस पे। एंड इवन इफ यू लुक एट द सक्सेस रेट ऑफ दैट फोन, उस जमाने में जब प्रेशर टच वाले फोन आया करते थे एंड नोकिया 1100, राइट, एंड नोकिया 1100 लोग यूज करते थे। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल था जो बड़े कीपैड वाले आते थे, उससे थोड़े रईस लोग थे वो प्रेशर टच सैमसंग और सोनी के यूज करते थे। एंड देन उससे जो रईस थे, वो जो कॉर्पोरेट वाले लोग थे, वो ब्लैकबेरी यूज करते थे। एंड उनसे जो रईस थे वो आईफोन 3GS यूज करते थे। एग्जैक्टली। तो 3GS में जो एक्सपीरियंस था, मैंने खरीदा नहीं, बट मैंने मेरे एक दोस्त का चलाया था कॉलेज में। इवन यू टॉक अबाउट उसका टच, यू टॉक अबाउट फंक्शनलिटी, यू टॉक अबाउट कि वो हैंग होता है नहीं होता है, ऑप्शंस कैसे हैं, यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फोन, यू टॉक अबाउट द स्लिमनेस ऑफ द फोन, एवरीथिंग। मतलब आप उसकी बॉडी की बात करो, हर चीज बाकी सबसे अलग थी। योर पॉइंट इज कि हर चीज जो आप प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हो, कोई भी फीचर है, इवन इट्स लुक्स, एवरीथिंग, अपीयरेंस, एवरीथिंग शुड गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट। राइट, ऑब्वियसली। मतलब जैसे अभी अपन आईफोन्स की बात कर रहे थे, तो आप ये देखो कि पहली बार जब इम्प्लीमेंट किया डॉन नॉर्मन ने उस पे, तो खैर उसकी प्राइस रेंज थोड़ी हाई थी, हर कोई के लिए अफोर्डेबल नहीं था। बट आज तो आईफोन गली गली में बच्चे के पास में, राइट। बट उस टाइम पे वो डिफरेंशिएटर इतना तगड़ा था कि आज तक आईफोन की एक अलग वैल्यू है। लोग सितंबर में बैठ कर आधी रात में उनका शो देखते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, न्यूज़ भी देखी मैंने स्टोर्स के आगे, राइट। स्टोर्स में लोग इतनी भीड़ है, और मतलब कि आज किसी को फील नहीं हो रहा कि वो 1 लाख 1.5 लाख का फोन ले रहे हैं, तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं। मुंबई से गुजरात से ट्रैवल करके मुंबई आ रहे हैं, ऑब्वियसली, वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। एंड द ओनली थिंग, जब आप एंड्रॉइड फोन 1.5 लाख रुपए का खरीदना चाहोगे तो आपका दिल 40 बार धड़केगा एक मिनी सेकंड में, एक नैनो सेकंड में। बट जब आप आईफोन 1.5 लाख का खरीदना चाहोगे, आप खुशी खुशी खरीदोगे, राइट। लोग EMI पे भी लेते हैं अब। और जैसे जो बॉडी वगैरह की मैं बात कर रहा था, इफ यू टॉक अबाउट जैसे आईफोन 6 तक 6, 7, आई थिंक इवन 8 तक भी उनकी एल्यूमिनियम बॉडी आती थी, राइट। तो एल्यूमिनियम बॉडी थोड़ी हाथ से फिसल सकती है। उसके बाद में स्टेनलेस स्टील XS जो था, XR में अगेन वो थोड़ी प्राइस रेंज, ग्लास बॉडी यूज की, राइट। टाइटेनियम भी आ गया, अब टाइटेनियम आ गया है। तो मतलब इवन बॉडी, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट को उठाते हो, यूज करते हो, अपने हाथ में रखते हो,
24 घंटे में से 5 घंटे यूज करते हो, तो ऑब्वियसली मतलब कि यू शुड फील कि वो एक अलग आपको एक्सपीरियंस, एक अलग फील दे रहा है। सो मतलब एवरीथिंग मैटर्स। राइट। नहीं, सो मेरे को जितना समझ में आया, आई थिंक एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अ यूजर नीड्स। ऑब्वियसली अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली विल नॉट, लाइक आई वुड एब्सोल्युटली। आज के टाइम पे क्या है गौरव, आज के टाइम पे द ओनली डिफरेंशिएटर बिटवीन प्रोडक्ट्स, बिटवीन कंपनीज, बिटवीन सर्विसेज इज नथिंग, जस्ट यूजर एक्सपीरियंस। आप देखो कि जब आप मूवी देखने जाते हो, आपके पास में बुक माई शो है, आप सिनेपोलिस की आप वेबसाइट से कर लो टिकट बुक, आप पेटीएम कर लो, फोन पे, गूगल पे, बैंक की एप्स, वेबसाइट गूगल करोगे तो बहुत सारे आपको वैसे ही मिल जाएंगे। बट स्टिल मतलब नॉट श्योर, नॉट promoting any brand, but most of the people use book my show, right, to book their movies, their shows, चाहे stand up comedy shows में जा रहे हैं, कैसे भी show में, the reason being the user experience they give is slightly different। और वो मूवी का नाम लेते ही अगर आप सोच भी रहे हो तो दिमाग में पहले बुक माई शो ही आता है। Obviously, अब जब आप देखो कि जब लॉकडाउन आया था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज ही एक केस स्टडी पढ़ी है। जब लॉकडाउन आया था तो आई थिंक 21-22 मार्च के लगभग आया था 2020 फर्स्ट लॉकडाउन जो आया था, एंड देन वो मई जून में जाके धीरे धीरे खुलने लगा था। दिसंबर के थोड़ा सा कुछ शॉर्ट पीरियड्स के हुए थे, फिर नहीं प्रॉपर लॉकडाउन मुझे याद है 22 या 16 पता नहीं, मतलब कि मार्च के हाफ के बाद में आया था, लग गया था। मतलब फुल लॉकडाउन जब कहा गया कि 15 दिन में खुल जाएगा, फिर और 15 दिन और 15 दिन, फिर जाके वो जून जुलाई में बहुत ही TNCs के साथ में ओपन हुआ था। उस टाइम पे जैसे अगर आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, कहीं भी जाना है जहाँ की महंगी टिकट्स हैं, ऑब्वियसली आप प्री बुकिंग करोगे, दैट इज बेसिक थिंग। आप मतलब उसी फ्लाइट के 5,000 दोगे, उसी के 50,000 क्यों देना चाहोगे? बहुत सारे लोगों ने की बहुत सारी एप्स थी, बहुत सारे पोर्टल थे, खुद एयरलाइन की वेबसाइट हैं, लोगों ने बुक की, किसी ने ऑफलाइन भी की होगी। बट जब सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई उस टाइम पे, मतलब अगेन सेइंग नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ ब्रांड, उस टाइम पे सिर्फ एक स्टार्टअप, एक ऐप थी जिसने सबको 100% रिफंड किया विदाउट गेटिंग एनी अमाउंट ऑन द कैंसिल टिकट्स फ्रॉम द एयरलाइन। एंड आज उसका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू बुकिंग है 8,050 करोड़ रुपए। ऐप का नाम है ईज माई ट्रिप। यस राइट। 3 भाइयों ने शुरू की थी एक ट्रेवल एजेंसी, उससे ऐप बनाई, बट उन्होंने जब लॉकडाउन में लोगों को रिफंड किया, द टोटल अमाउंट वाज 130 INR, मतलब 130 CR, 130 करोड़ रुपए अपनी जेब से पे किया। बट अगेन मतलब कि समटाइम्स टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस, और उसके बाद में वो दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट, राइट, ऑब्वियसली उसके बाद में वो ऐसी ऐप बन गई कि साल के 8,050 करोड़ रुपए वो रेवेन्यू बुक कर रहे हैं। Starting from a travel agency, started from a travel agency. Now, आप इसमें आप एक चीज देखो कि जब लॉकडाउन 2021 में फिर से आया था, 2020 में भी लगभग ऑन ऑफ ही चल रहा था, 2022 में जाके सिचुएशन सेटल हुई, तो जितने भी लोग थे जो टिकट्स बुक करते थे, खास करके जिनको मेडिकल इमरजेंसी, आज भी ईज माई ट्रिप क्या करता है, अगर आप मेडिकल रीजन है आपको 100% रिफंड विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, तो जितने भी ऐसे लोग थे, ऐसे कस्टमर थे, उन सब ने ईज माई ट्रिप यूज किया, राइट, एंड दैट बिल्ड देयर वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि आज 8,050 करोड़ कैन लाइक मेक अ कंपनी और ब्रेक अ कंपनी आल्सो। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग हैं। तो यूएक्स में व्हाट डू यू से कि यूएक्स का क्या सीन है अभी? सो बेसिकली देखो गौरव कि हर साल मतलब कि जो आज से कुछ टाइम पहले के डेटा है वो कहते हैं कि करीबन 10 लाख 20 लाख ग्रेजुएट्स हर साल पास आउट होते हैं, और मेजरली डिजाइन में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, बाकी जो अदर डिग्रीज है उनमें भी होते हैं, राइट। जैसे कि अगर 20 साल पहले चलते हैं अपन, जैसे 90 मतलब कि 20 नहीं, आप और थोड़ा सा पीछे 25 साल के लगभग 1995 2000 के लगभग, जब इंजीनियरिंग एक नया सब्जेक्ट था, राइट, एक नया डोमेन था इंजीनियरिंग, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और IT इंजीनियरिंग जो था, उस टाइम पे जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया था वो आज लंबरगिनी के वो आज चॉपर्स में घूम रहे, राइट। बट
same if you look at a computer science engineering graduate in 2023 or maybe even 1 2 3 4 years back, they are not getting that much of money, that much of job opportunity, that much of kind of career growth, and not learning at that level. जो आदमी 1995 या 2000 के लगभग एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना, एक आईटी इंजीनियर बना, आप देखिए वो उस टाइम जो विंडोज का जो पहला वर्जन चल रहा था उस टाइम, मैक जब शुरू ही हुआ था, वहां से लेकर के आज वो कितनी हाई एंड टेक्नोलॉजी, उनकी लर्निंग का लेवल क्या हुआ है. राइट जब मतलब कि कोई चीज बॉर्न हुई थी उस टाइम पे, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स वर बॉर्न, इंटरनेट वाज न्यू, मतलब कि बहुत इंडिया में तो सिर्फ मेट्रो सिटीज के अलावा आई एम श्योर कि कहीं आया था. राइट. सो वो जो दौर था कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, आज वो दौर है यूएक्स का. मतलब इट जस्ट द बर्थ, इट जस्ट द स्टार्ट. इफ यू विल गेट इनटू दिस टुडे, you are going to learn a lot, you are going to grow a lot in terms of your career, in terms of in the monetary ways, everything, right? But still, like if you stick to some कन्वेंशनल डोमेन, चाहे वो डिजाइन में है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो किसी और में है, आज से कुछ साल बाद में व्हेन यू फील कि इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है बट महंगाई उतनी बढ़ गई है, आपको शादी करने के लिए, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, एंड इन मतलब फॉर दैट मैटर, फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी. Right, the expenses are going to be on higher end, the prices are going of everything are going to be on higher end, but you are not earning that much. So at that time, if you plan to switch your career, so that is not going to be very beneficial way, so or you can say a very beneficial or very fruitful decision, जो कि अगर आप आज कर लेते हो, right, वो switch, तो वो एक अलग आपको life मिलेगी. Exactly. So जैसा कि आप कह रहे हो कि like it's a kind of saturation into other domains. Obviously. So UX is the right thing to go for now. Obviously, जैसे आप देखो कि अगर 10 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट every year they are passing out from the colleges, and out of which like few people are there, like few students are there who are like very intelligent, passing out from IITs, and some management graduates are passing out from IIMs, but rest other students are passing out from private colleges, private universities, and especially students who are into tier 2 engineering colleges and tier 3 engineering colleges, and some other government institutions which are not at that level जहाँ पे IIT, IIM है, they generally don't get any kind of job after their engineering or any kind of graduation. Even packages भी बहुत कम से start obviously होते हैं. अब देखो कि 3 लाख के लगभग का पैकेज है, जो अभी और भी कम आ गया हो तो पता नहीं, बट जब हम लोग पास आउट हुए थे, when I done my engineering in 2016, उस टाइम पे 3-3.25 लाख रुपए का TCS और इन्फोसिस देती थी पैकेज. मतलब वी कैन से कि जो MNCs थी वो उस टाइम पे उतना फ्रेशर्स को देती थी फॉर ए tier 2 कॉलेज स्टूडेंट. So 10-12 लाख आप लगाओ इंजीनियरिंग में या किसी और डोमेन में, एंड यू आर गेटिंग लाइक नथिंग. एंड हमारे बैच में जैसे 60 बच्चे थे, तो अगर मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बैच हु स्टार्टेड देयर इंजीनियरिंग मतलब क्लासेस या बैच को स्टार्ट किया था इन 2012 एंड कंप्लीटेड इन 2016. मैं उस बैच की बात कर रहा हूँ. आज के बैच का तो और भी बुरा हाल होगा. वो उसमें से मोर देन 50% पीपल because of some family pressure or because of कि they don't have anything else to do in hand, so they went for government examination. And even like few of my close friends are still doing that. Right. It's been 8 years, they are married, they have kids, but again they are preparing for the exams. I think it's a lot of you can say kind of कि गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है. उनको हमेशा आई थिंक लाइक आई जेन्युइनली थिंक कि लोगों को हमेशा नई चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करना है. राइट. दे शुड नॉट ओनली इन्वेस्ट इनटू कन्वेंशनल थिंग्स. Right. Even sorry to interrupt you, Gaurav. Even let me tell you कि जैसे ठीक है आपको 12th के बाद में गाइडेंस नहीं मिली, आपने कोई भी डिग्री में आपको नहीं मिला, आप डिग्री से पास आउट हुए. राइट. बट आई वुड से जैसे अगर इंडिया में अगर
एक महीने में 100 लोग अगर यूएक्स सीखते हैं तो उनमें से 80 to 85% आर द पीपल जो कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग in the industries and have a work experience of minimum of 2 to 3 years to 15 years. Even I know a lot of people who were into different domains. कोई डेवलपर था तो कोई डिजाइनर था, जो कन्वेंशनल कोई भी कोर्स का, इवन कुछ मार्केटिंग के लोग थे, कुछ सेल्स के थे, कुछ कस्टमर सपोर्ट वाले लोग थे. And then when they felt, मतलब you are smart enough if you know forecast, if you foresee कि आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरे डोमेन में, मेरी प्रोफाइल में एक सैचुरेशन आ जाएगा. राइट. So such intelligent people, they generally don't wait for anything bad to happen in their life. They go out, they do such courses like UX is one of their top choice kind of, and then they get the placement support, job opportunity support from these design studios, these design institutions, and then they switch their career and do wonders in that. So Abhishek, if somebody is switching a domain into UX after having like XYZ experience, 2 years, 5 years or anything, so will they be considered as a fresher, or will they be getting like good opportunities, good packages, or you can say hikes when they are switching, because nobody wants to start from the scratch, right? Right. So what do you have to say about that? So Gaurav, there are two things which you asked in your question. First is if they have experience. Second, are they freshers? Right. For UX, as a UX designer, they are fresher. Okay. But whenever they are going to get a job in UX and having n number of years or XYZ number of years work experience in some other domain, so they are not going to get considered as कि they are fresher, they had this first job after their education. Oh, that's great. Like, तो मतलब एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया. जैसे कि आप देखिए कि जैसे कि आई टोल्ड यू इन एवरी इंडस्ट्री सेगमेंट यूएक्स डिजाइनर्स आर गेटिंग हायर्ड. इवन फॉर जियो देयर आर अराउंड 2000 यूएक्स डिजाइनर्स व्हिच आर सिटिंग इन देयर नवी मुंबई हेड ऑफिस. दे आर ऑल्सो यूएक्स डिजाइनर्स. बट अगर आप देखोगे तो जियो क्या है, वो तो टेलीकॉम कंपनी है. बट यूएक्स डिजाइनर्स का वो क्या कर रही है? Obviously, they are sorting out or they are enhancing the experience of their employees within the internal process by improving the internal process. And also they have a lot of apps. Now Jio is also entering into OTT platform like Jio Cinema also acquired Voot few days back. So अगर आपने टेलीकॉम में काम किया 5 साल, फिर आपने UX किया, फिर आप यूएक्स की जॉब लेने के लिए जाते हैं, सो ऑब्वियसली योर एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड. ओके. अब मैं आपको एक बताता हूँ. 2017 या 17 की बात है. पुणे की एक कंपनी है, मतलब आई वोंट नेम द कंपनी. तो वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब कि वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है. एंड उनके प्लांट में प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास में 4 मशीन्स थी. 4 ऐसे मशीन, एक पूरा बड़ा सा प्लांट है, और उसमें वो मेडिसिन बनाती थी. एंड उनको बहुत ज्यादा वेस्टेज था, बहुत ज्यादा वेस्टेज, क्योंकि सब कुछ मैनुअल था. फिर दूसरा उनका प्रॉब्लम क्या था कि जैसे जितने भी जो वर्कर्स आते थे उनको पहले तो एक्वायर करना बहुत मुश्किल है. फिर एक्वायर कर लिया तो उनको 3, 4, 5, 6 महीने उनको सिखाओ कि हाउ टू ऑपरेट दोज मशीन्स. 4 मशीन्स हैं. आपने अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कैसा भी हो, बहुत खतरनाक, बहुत टेम्परेचर, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, रिस्की होता है. तो जितने भी लोग आते थे, तो ऑब्वियसली जैसा मतलब एवरीबडी नोज की मेडिसिन जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनती है. वो जब उस चीज को मैनुअली करते थे तो 3-4 महीने से ज्यादा उनका लाइफ पीरियड वहां पे होता नहीं था. उससे पहले दे हैव टू वॉक आउट, क्योंकि वो मतलब ऑब्वियसली इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब कुछ. अब कंपनी का कॉस्ट क्या था? हायर करो वर्कर्स को, लेबर को हायर करो, उनको ट्रेन करो 3, 4, 5, 6 महीने, फिर उनको ऑनबोर्ड करो, वो फुल टाइम करेंगे, फिर उनके हेल्थ के इश्यू शुरू हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, फिर नए दोबारा हायर करो, दोबारा ये सब कुछ प्लस वेस्टेज. तो अब देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है. राइट. अब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो इसमें हमें जो पूरी टीम हमने बनाई थी, उसमें हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग
और जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क एक्सपीरियंस है, people who can understand machine. ऑब्वियसली वो हमें लगाने पड़े, क्योंकि मशीन है तो मशीन को तो वो इंसान ही सबसे ज्यादा समझ पाएगा. इवन उस प्रोडक्ट का जो हेड था, मतलब सॉरी उस प्रोजेक्ट का जो हेड था, वो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस बंदा था. ओके. उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी लोग डालने पड़े, क्योंकि मशीन चलती है बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम से तो चलती है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी डालने पड़े. देन हमें प्रोडक्ट डिजाइन, जो ऑफलाइन प्रोडक्ट वाले बंदे होते हैं वो भी डालने पड़े. उसमें बहुत सारी वैरायटी के लोग थे. And then finally after मतलब within around 6 to 7 months we have successfully done that. उसके बाद में उनका वेस्टेज एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो गया, मतलब नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि उतना तो केमिकल्स में होता ही है. एंड पूरा ऑटोमेटिक हो गया, पूरा डिजिटलाइज हो गया. कोई जरूरत नहीं थी कि उनको उस प्लांट के जहां पे वो 4 मशीन पैक हैं उसके अंदर किसी को अंदर जाने की जरूरत, एक्सेप्ट मेंटेनेंस. बट जब मेंटेनेंस होती है तो वो सब बंद होता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. तो मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई हर बैकग्राउंड के लोग आर रिक्वायर्ड इन यूएक्स इंडस्ट्री. एंड दैट्स व्हाई योर past मतलब work experience and your last degree, everything is going to get considered. Okay. Also अभिषेक, थोड़ा सा UX का प्रोसेस बताएंगे, लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या स्टार्ट होता है, एंड देन कि कौन से प्रोफाइल्स पे वर्क कर सकते हैं UX में, बिकॉज लोग, इवन आई डोंट नो अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स इनटू UX, सो आई वुड लाइक टू लाइक हियर इट आउट. राइट. सो बेसिकली क्या होता है कि आप ये देखिए कि UX डिजाइन में मेजरली 6 से 7 मॉड्यूल्स हैं. ओके. एक प्रोसेस है पूरा. नॉर्मली जब आप जब सीखते हो UX, आप इस प्रोसेस को सीखते हो, साथ साथ अगर मतलब यू आर लकी इनफ कि इफ यू गेट ए प्रोजेक्ट, एंड मोर लकी इनफ इफ यू गेट ए लाइव प्रोजेक्ट. ओके. जिसपे आप, जैसे आपने फर्स्ट मॉड्यूल सीखा, आप उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट्स, गेटिंग द फीडबैक, गेटिंग द इम्प्रूवमेंट डन. फिर सेकंड मॉड्यूल आपने पढ़ा, फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, एंड सो ऑन. ओके. राइट. जिसमें वो पूरा जो प्रोसेस है वो आप जब कहीं अच्छी जगह से आप पढ़ोगे या कोई भी पढ़ेगा तो वो सीखते हो, एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एंड देन यू लर्न हाउ टू वर्क. ओके. लाइव प्रोजेक्ट्स का एक फायदा ये होता है कि मतलब आपको वो फील आती है कि जैसे आप एक्चुअल कॉर्पोरेट एक्चुअल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. राइट. वो सबसे जरूरी है. ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस अगर आपको होता है, सो यू विल गेट ए प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर आपकी लाइन में 10 लोग लगे हैं किसी कंपनी में सेम प्रोफाइल के लिए, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस, दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स एंड सो ऑन. राइट. सो UX के जो 6 मॉड्यूल्स हैं, सो पहला मॉड्यूल जो होता है दैट इज ऑल अबाउट यूजर रिसर्च. ओके. द सेकंड मॉड्यूल इज ऑल अबाउट putting out that data or putting up that data of user research in such a way that anybody and everybody can understand that easily. Okay. The third one is all about like finding out the solution, creating the wireframes, creating the solution, doing the testing on that, and to make it a feasible solution. Okay. The fourth part is all about UI design, like how the product looks like, how the product, like what is going to be the font size, color combinations, and so on. The fifth one is visual design, which is all about कि जो भी आपने डिजाइन किया है उसको टूल्स पे लाओ आप पूरा, so that उसको आप आगे डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट व्हेन आई से डेवलपमेंट, सो इफ इट्स ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वो ऐप है, वेबसाइट है, कोई भी जैसे वेरिएबल्स का कोई सॉफ्टवेयर है, सो दैट इज एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बट इट्स ए ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, तो मतलब इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली. So you're saying it's applicable in every product? Yeah, digital and non-digital also. Right. And then the 6th module is usability testing, which is all about कि ये प्रोडक्ट कितना यूजेबल है, एंड जिन कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, इज दैट प्रॉपर्ली सॉल्व्ड और नॉट. ओके. बिफोर लॉन्चिंग वो फाइनल टेस्टिंग एंड ऑल. ऑब्वियसली. ऑलराइट. So Abhishek, I got the idea about the profiles and all, right? So अब जैसे हमारे जो ऑडियंस है, कुछ इसमें से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, a lot of them are students जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. So उनके लिए कैसे, उनके लिए समझना इजी हो कि उनको हर मॉड्यूल में क्या काम करना है,
वो किस प्रोफाइल से कैसे लिंक्ड है, राइट? जैसे कि यूएक्स में मे बी देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स, राइट? सो हाउ इट विल बी कनेक्टेड टू देम एंड हाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उनका क्या काम होगा, कैसे वो उस चीज से रिलेट करेंगे. यू कैन हेल्प अस आउट विद दैट. राइट. मतलब यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हर मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं, हाँ, फिर उससे कौन सी प्रोफाइल आती है, वो बंदा क्या काम करेगा एग्जैक्टली. गॉट इट. सो जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू लाइक द फर्स्ट मॉड्यूल इज यूजर रिसर्च, राइट? सो यूजर रिसर्च. और आप एक चीज देखिए, सबसे अच्छी चीज ये जो 6-7 मॉड्यूल्स मैंने बताए, हर मॉड्यूल से एक जॉब प्रोफाइल लिंक्ड है. यस. तो जैसे यूजर रिसर्च है, सो यूजर रिसर्च पे जॉब प्रोफाइल इज यूजर रिसर्चर. ओके, राइट? सो यूजर रिसर्च इज ऑल अबाउट talking to the customers and the stakeholders of the product as well. Okay. एंड मतलब जनरली 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं. जैसे एक होता है जो न्यूली लॉन्च होने वाला है, एक होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है. जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे अपन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे देखते हैं उनके अपडेट्स आते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कार्स की बात करें तो कार में जैसे न्यू मॉडल्स आते हैं हर कार के, थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके, एक्सपीरियंस चेंज करके, राइट? सो अगर वो एक नया प्रोडक्ट है तो यूजर रिसर्चर जो है वो उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके यूजर्स को पकड़ेगा और अपने स्टेक होल्डर्स को पकड़ेगा. चाहे वो हो सकता है कि आपको ऑफलाइन भी जाना पड़े, और मतलब जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आपको फॉरेन कंट्रीज भी जाना होता है. हो सकता है कि वो टेलीफोनिक भी हो जाए, आजकल तो वीडियो कॉल पे भी हो जाए, और यू कैन कॉल देम टू योर ऑफिस. आप वहां पे बैठ के उनका एक इंटरव्यू लो. एंड दोनों चीजों में, चाहे वो स्टेक होल्डर का इंटरव्यू हो रहा हो और चाहे वो कस्टमर का हो रहा हो, बेसिकली 3 थिंग्स विच आर देयर जो कि फाइंड आउट होनी चाहिए. फर्स्ट इज द नीड, कि यूजर की क्या नीड है, स्टेक होल्डर की क्या नीड है, स्पेशली यूजर कि वो प्रोडक्ट यूज करेगा. सेकेंड इज कि द पेन पॉइंट्स, if a user is already using their product या फिर वो नया प्रोडक्ट है तो उनके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, so what are the pain point that customer is getting. And the third one is goal, कि what is the final goal, why they are what they want and why they are using obviously. And ये इंटरव्यूज करने से पहले एक होता है पर्सोना मैपिंग. एक मतलब कि बहुत ज्यादा टेक्निकल तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं मतलब ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. एक होता है पर्सोना मैपिंग. पर्सोना मैपिंग में ये कैटेगराइज करते हैं कस्टमर्स को, कि जैसे आप ये मानो कि एक कैटेगरी हो गई मेल हु इज फ्रॉम 18 to 22 years, ये कॉलेज स्टूडेंट. एंड एक कैटेगरी होगी जैसे 22 to 26 की फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब वाला हो गया, या गवर्नमेंट प्रिपरेशन वाला. तो जो मेन चीजें होती है, दैट इज जेंडर, दैट इज एज, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू बिलोंग टू, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, एंड देन what kind of devices do you use much, क्या फोन ज्यादा यूज करते हो, कि लैपटॉप ज्यादा यूज करते हो, कि टैबलेट ज्यादा करते हो, टीवी ज्यादा देखते हो. एंड what kind of medical situation you have. मेडिकल सिचुएशन स्पेशली तब कंसिडर होती है जब वो कोई चीज आपकी, कोई प्रोडक्ट आपका फूड से रिलेटेड हो, या कोई प्रोडक्ट आपका इनके कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो. मेजरली इनमें जनरली इतना उस पर फोकस नहीं दिया जाता. एंड देन आपकी पूरे, जब आपकी ये नीड, पेन पॉइंट सब कुछ कलेक्ट हो जाता है, फिर आपकी कस्टमर जर्नी मैपिंग बनती है जो आप बनाते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, जो नेक्स्ट प्रोफाइल पे आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे, उनके कोलैबोरेशन में. So customer journey mapping is basically कि if you are using a product, then what is your whole journey and how you are feeling in that journey. So जैसे कि अगर आपको WhatsApp पे वीडियो कॉल आया आपके घर से, एग्जाम्पल, तो आपने वीडियो कॉल, आपने फोन में देखा, उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिख रहा है, आपने उसको ओपन किया, आपकी पूरे दिन की जर्नी क्या रहती है, उसके बीच में वो इवेंट्स कौन से होते हैं जिनमें कि यू यूज दैट प्रोडक्ट. And while using that product, how you are feeling. कि फॉर एग्जाम्पल कि अरे फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड की ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल बार बार अटक की जाता है, या फिर जैसे कि यू फील वेरी बैड व्हेन जब आपको इनकमिंग कॉल आ रहा है, आपने उठाया भी नहीं है, बट आपका वीडियो ऑलरेडी दिख रहा है उधर.
मतलब सच काइंड ऑफ जस्ट एग्जांपल्स। तो कस्टमर जर्नी मैपिंग होती है, एंड जब वो होती है तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन एक चीज मैंने मिस कर दी। यूजर रिसर्चर जो होता है, दे मतलब जनरली पीपल हु आर गुड इन कम्युनिकेशन एंड हु आर लाइक वेरी ओपन, जो कि दे कैन टॉक टू एनीवन एनीवेयर, जनरली गो फॉर दिस प्रोफाइल। ओके, गुड कम्युनिकेशन डजंट मीन कि बहुत तगड़ी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत तगड़ी हिंदी बोल रहा है, कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। ए पर्सन हु कैन go to someone, start a conversation, start a conversation and can open them up कि वो पूरा बताना शुरू करे, insights बता सके, क्या यूसेज वगैरह सब कुछ। राइट। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के जो लोग होते हैं, जनरली पीपल हु आर गुड इन डेटा मैनेजमेंट, दे गो फॉर दिस, क्योंकि जो पूरी यूजर रिसर्चर ने जो डिटेल्स निकाली, कस्टमर जर्नी मैपिंग या पर्सोना मैपिंग, दीज आर द पीपल हु आर गुड इनफ टू प्रेजेंट दैट विजुअली कि वो किसी को भी इजीली समझ में आएगा। ओके, जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप IRCTC एक एग्जांपल लेते हैं, अपन बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करें, सो दैट जो आपकी ऑडियंस है उनको हर एक एंगल वो समझ में आए कि वो अगर एक चीज यूज नहीं करते दूसरी करते हैं तो कैसा। सो जैसे IRCTC है, तो IRCTC पे अगर आप उसका पूरा टास्क फ्लो बनाओ, टास्क फ्लो मीन्स कि जब जैसे आप वेबसाइट पे गए, होम पेज आया, फिर आपको 10 ऑप्शन आए, 10 के अंदर 10 और ऑप्शन आए, 10 के अंदर और 10 आए, फिर जैसे अगर आपको टिकट कैंसिल करनी है तो आप होम पेज पे जाओगे, फिर आप माई अकाउंट पे जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर उधर जाओगे। ये मतलब द होल जर्नी ऑफ ए कस्टमर जो कि उसको टिकट कैंसिलेशन के लिए करनी होगी। ओके, मतलब अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन बहुत ही, आप देखो तो बहुत ही एक टास्क है इस इंफॉर्मेशन को इतने अच्छे से प्रेजेंट करना कि कोई भी लेमैन आके भी देखे, इवन आपको क्लाइंट आगे देखे। इट इज नॉट नॉट गारंटेड कि जो क्लाइंट है उसको भी UX आता है, राइट। जैसे IRCTC जो आपको दे रहा प्रोजेक्ट उसको भी आता है, ये कोई श्योरिटी तो है नहीं। तो वो कोई भी लेमैन आके भी देख रहा है, उसको भी वो आप पूरा समझा पा रहे हो। ओके, तो मतलब these people are good in and should be good in data presentation, data visualization and kind of data management moreover. Okay, all right. Then जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, इससे ये समझ में आता कि what is the exact problem happening and what all pain points are there. अब जो सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफाइल है, दैट इज द सॉल्यूशनिंग पार्ट, जिसपे अलग अलग तरीके के नाम है, डेजिग्नेशन बहुत सारी कंपनीज में है, जैसे UX कंसल्टेंट, कुछ में डिजाइन कंसल्टेंट, कुछ में UX एडवाइजर, कुछ में वायर फ्रेमिंग एक्सपर्ट है। तो बहुत सारे नाम है अलग अलग, बट कुल मिला के बात ये होती है कि व्हेन यू गेट टू नो ए प्रॉब्लम through the data collected by user researcher and mapped by the information architect, what is the exact problem, then how efficiently and effectively you are solving that problem. Right. जैसे एक और example I am taking so that it doesn't get into very technical way, हर किसी को समझ में आए। जैसे आप ये मानो कि अगर हम Paytm की केस स्टडी लेते हैं, Paytm आप यूज करते हो, राइट, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, करोड़ों अरबों, जोमेटो की ले लो, ठीक है। अब जैसे अगर अपन पेटीएम की बात करते हैं, तो पेटीएम में मिलियंस ऑफ यूजर्स आर देयर। अब उनको अगर आप कैटेगराइज भी करोगे तो आप कितने एंगल में कैटेगराइज करोगे। एक 10 साल के बच्चे से जो अपने लिए चॉकलेट खरीदने जाता है, वहां से एक 70-80 ईयर्स के अंकल आंटी जो कि खुद के लिए मेडिसिन खरीदने जाते हैं, एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज देयर onboarded on Paytm, right, and using Paytm for the online payments, especially after demonetization। तो कोई भी यूज कर रहा है, मजबूरी बन गई थी एक टाइम पे यूज करना। अब आप कितनों को सेगमेंट करोगे? करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोगों के करोड़ों, अगर आपने उसको 100 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया, जो कि बहुत कम है, 100 कैटेगरीज में से अगर सब ने अपने 3-3 पेन पॉइंट भी बताए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 300 पेन पॉइंट आ गए आपके पास में। बट यू नीड टू, एज ए वायर फ्रेमिंग पर्सन और सॉल्यूशनिंग पर्सन, यू नीड टू सॉल्व दोज 300 पेन पॉइंट्स। बट द चैलेंज इज कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको चेंज करना है, राइट। मतलब एक ऐप है, चाहे वो एंड्रॉइड है, चाहे iOS है, चाहे कोई भी फोन है, आपको एक उस ऐप पे चेंज करना है। एंड यू नीड टू मेक श्योर
कि जो बाकी के लोग हैं उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए आपके इन चेंजेस की वजह से। एग्जैक्टली, वन सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन ऐसा जिससे 300 पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो आप, या फिर एक नहीं तो 2 सॉल्यूशन, बट मतलब अलॉन्ग विद दिस यू आर मेकिंग श्योर कि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो जाए। मतलब कि इफ यू इमेजिन दिस तो ये बहुत बड़ा टास्क है एक। एग्जैक्टली क्योंकि मतलब वैसे जैसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि एक खुश होगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, बट एज ए यूएक्स डिजाइनर यू कांट टेक दैट रिस्क। राइट। एक खुश होगा दूसरा नाराज हो गया तो जितने डाउनलोड हुए उससे ज्यादा अनइंस्टॉल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, राइट। सो ये सबसे डिफिकल्ट इवन फॉर ए फ्रेशर, मतलब जो फ्रेशर्स भी आते हैं जनरली इसमें वो लोग जल्दी हायर होते हैं, वो लोग जल्दी जाते हैं हु आर गुड, हु आर वेरी इनोवेटिव इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस। ओके। एंड इवन एज ए फ्रेशर भी 8-10-12 लाख रुपए से ज्यादा ही लोग एज ए फ्रेशर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, एवरेज सीटीसी उनकी होती है। एंड जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनकी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी सीटीसी होती है। देन आता है यूआई डिजाइन। सो यूआई डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन इज ऑल अबाउट लाइक हाउ पीपल आर मतलब हाउ पीपल शुड इंटरेक्ट विद योर प्लेटफॉर्म, योर ऐप, योर प्रोडक्ट, whether it's digital product or non-digital product, and what kind of look, color and feels they are going to get. And कि जैसे जो अगर आपको जैसे पेटीएम की अपन बात कर रहे थे, क्यूआर कोड स्कैनिंग का बटन आता है, ऐप ओपन करते ही जिससे पेमेंट करते हो आप, राइट। वो बटन कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगल या राउंड कर्व्स उसके होने चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट के साइज क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीजें यूआई इंटरेक्शन में आ जाती हैं। देन आता है विजुअल डिजाइन। सो यूआई और इंटरेक्शन में जनरली पीपल हु आर गुड इन लुक, कलर एंड फील वो लोग जाते हैं। ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप खास करके इंडिया में तो कुछ टाइम पहले तक तो आप अपन भी अपने पेरेंट्स भी जैसा मानते हैं कि एक डिजाइनर, एक अच्छा डिजाइनर वो है जो कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा कर दे, वो अच्छी चीज को चूज कर ले, अपीयरेंसेस पे ज्यादा, अपीयरेंसेस पे, एग्जैक्टली द राइट वर्ड। सो बट वैसा नहीं है। Even if you know nothing about look, color and feel, then also you can become a UX designer, right? But अगर आपको UX में सिर्फ UI वाला सेगमेंट पे काम करना है, then you have to be good in that. Okay. But वो धीरे धीरे सीख जाते हो आप। एंड मतलब जब आपको नहीं पता है, जब मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मुझे लुक, कलर, फील के बारे में, मैं कपड़े खरीदने जाता था, अच्छे कपड़े ही नहीं खरीद पाता था। बट वेन आई एंटर्ड इनटू यूएक्स तो धीरे धीरे लोगों के साथ में काम करते करते आप सीख जाते हो वो चीजें। बिल्कुल, मतलब दैट इज नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ब्लू। सो देन इफ वी कम टू द नेक्स्ट प्रोफाइल, दैट इज विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइनर्स में कम्युनिकेशन वगैरह ये ज्यादा कंपनीज प्रेफरेंस नहीं देती, बट दे शुड बी गुड विद द टूल्स। ओके, कि आप टूल्स में अच्छे हैं, सो यू आर गुड। सो एज ए विजुअल डिजाइनर आपको यू शुड बी गुड विद द टूल्स, कि आप को जो भी डिजाइन गाइडलाइंस मिली है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनको आप एक टूल पे ऑनबोर्ड कर पाए, ताकि अदर पीपल लाइक द डेवलपमेंट और मे बी द मैन्युफैक्चरिंग टीम्स कैन यूज दैट। हैंड ऑफ्स, हैंड्स ऑफ इसके बाद में आता है। ओके ओके। सो ये हुआ विजुअल डिजाइनर। देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग में प्रोफाइल होती है यूजेबिलिटी एनालिस्ट। सो बेसिकली यूजेबिलिटी तो एक्चुअली लैब्स में होती है। लैब्स कैसी होती हैं, जैसे कोई रूम हो गया, उसके पास में एक ऑब्जर्वेशन रूम हो गया, एंड जनरली ये किया जाता है कि जो इनिशियली जो कस्टमर्स आए थे, जिन्होंने यूजर रिसर्चर को अपने पेन पॉइंट्स बताए, जिसने अपने को अपने नीड्स बताई, गोल्स बताई, यूजर रिसर्च किया, राइट, उन लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों को एक अपडेटेड प्रोडक्ट दिया जाता है, एंड एट दैट टाइम द यूजेबिलिटी एनालिस्ट क्रिएट्स अ रिपोर्ट कि हाउ कंफर्टेबल दे आर फीलिंग व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, एंड उनका क्या फीडबैक है। जैसे एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट ले लो, पेटीएम ले लो। पेटीएम में अगर आप एज ए यूजर, आपने यूजर रिसर्च में फीडबैक दिया था कि मुझे इसमें पेटीएम का जो बैंक है उसका बैलेंस देखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, yes. मुझे कोई नया डेबिट कार्ड ऐड करना है, वो करने का नहीं मिल रहा है, मुझे रेंट पे करना है, वो नहीं मिल रहा है। तो जब यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, कैमराज विल बी देयर, पीपल विल बी देयर, एंड आपको फोन दिया जाएगा दोबारा से पेटीएम की, यू ओपन पेटीएम एंड यू पे योर रेंट। एग्जाम्पल,
पे करके देखो, लाइव टेस्टिंग करते हैं। राइट। सो अगर आप फिर से आप उसमें ढूंढ ही जा रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, तो इट इज नॉट गुड। ओके। बट वहीं अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी नहीं है, बट एक सर्च का ऑप्शन दे दिया आपने, उसमें रेंट सर्च किया तो आपको तुरंत मिल गया, दैट मीन्स कि 50-50 ठीक है। बट वहीं अगर सारे ऑप्शन जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे दिए, और जैसे कि कौन सा ऑप्शन पहले आना चाहिए कौन सा बाद में, मतलब इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल कहानी होती है। बट जैसे आपको रेंट का ऑप्शन अल्फाबेटिक में मिल गया, सारे ऑप्शंस अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, सो दैट इज अगेन वेरी गुड, दैट इज 70% गुड। इवन इफ आई एम एबल टू फाइंड इट, अगर मैं अच्छे से फाइंड कर पा रहा हूँ और टास्क कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स सॉल्विंग माय प्रॉब्लम। ऑब्वियसली, जैसे आप अगर चाय पीने जाते हो, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, पेट्रोल भरवाने जाते हो, तो आप पेटीएम ओपन करो, आपको सबसे ऊपर बटन मिलेगा स्कैन QR कोड, आप स्कैन करो, वहां से पेमेंट हो गया, डन। राइट, दैट इज गुड UX। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजेबिलिटी रिपोर्ट, दैट वेदर दे so it all depends on the usability report whether the product is going to get launched। okay। और again अगर उसकी 100% ओके नहीं हुई रिपोर्ट, तो वो पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। Okay, all right। And usability analyst में मतलब कि these people should be good with the psychological concepts, जैसे कि जिनकी अच्छी साइकोलॉजी होती है वो शक्ल देख के बता देते हैं कि he or she is feeling good, bad, comfortable, sad, angry, जो भी अलग अलग इमोशंस होते हैं। So yes, ये वो 6 मॉड्यूल। So अभिषेक, जैसा आपने बताया कि डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप पे आप डिफरेंट प्रोसेसेस करते हो। नाउ अब लेट्स से कि कोई एक UX डिजाइनर बन गया, इज अ सर्टिफाइड UX डिजाइनर, नाउ व्हाट, लाइक व्हेन ही स्टार्ट्स हिज करियर, अब स्टार्टअप कंपनीज हैं, लॉट ऑफ डिजाइनिंग स्टूडियोज हैं, MNCs है, तो क्या इनमें डिफरेंसेस होती हैं उनके वर्क कल्चर में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वो करते हैं या प्रोफाइल्स पे काम करते हैं? सो गौरव, कैसा होता है कि इसमें दोनों चीज मैटर करती है। फर्स्ट कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव रिसेंटली डन ए UX सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम सम गुड इंस्टीट्यूशन, एंड आपने लाइव प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, सो आपका पोर्टफोलियो भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, देन देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, व्हाट इज योर चॉइस? ओके, सो आई हैव अ थिंग कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसमें जाना। आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, कि जैसे आपको अगर लोगों से बात करना बहुत पसंद है, हाँ, तो आप यूजर रिसर्च के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको अगर लुक कलर फील में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप UI डिजाइनर या इंटरेक्शन डिजाइनर के लिए अप्लाई कर दीजिए। अच्छा। आप विजुअल डिजाइन में बहुत अच्छे हैं, मतलब टूल्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ओके, मतलब इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। राइट। तो जनरली होता कैसा है कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब इन ए स्टार्टअप, तो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि मतलब क्योंकि फंडिंग की कमी होती है कुछ स्टार्टअप्स के पास में, और स्टार्टअप नाम ही जब ऐसा है कि वो शुरू हुए हैं, अभी वो बड़े होंगे, बिल्कुल, तो वो जनरली एज ए UX डिजाइनर हायर करते हैं। ओके, एज ए UX डिजाइनर कि आपका जो डेजिग्नेशन है दैट इज UX डिजाइनर, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल प्रोसेस। ऑल राइट। जो थोड़े फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन में हायर करते हैं। कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ। जो नेशनल लेवल कंपनीज होती हैं, डिजाइन स्टूडियोज होते हैं, या जो अच्छे से फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि यूजर रिसर्चर का या फिर यूजर रिसर्च का और यूजेबिलिटी का कॉम्बिनेशन कर दिया। ओके, ऑब्वियसली सेम काम है। नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द रिसर्च ऑन यूजर्स एंड डूइंग द एनालिसिस ऑफ द यूजेबिलिटी। इसका फायदा क्या उनको होता है कि जो 2 रिसोर्सेज करते हैं वो एक कर रहा है, दूसरा जो जिस रिसोर्स इन द सेंस कि जो भी मैन पावर है, जो भी, बिल्कुल, वो जब वही लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वही लोगों के पेन पॉइंट निकाल रहा है, नीड्स निकाल रहा है, गोल्स निकाल रहा है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट दोज पॉइंटर्स, और वो ही टेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी की, सो यस, गुड कॉम्बिनेशन नहीं होगा ऑब्वियसली। एक और कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज UI डिजाइन और विजुअल डिजाइन का, कि आप लुक कलर फील्ड में भी अच्छे हैं, आप टूल्स में भी अच्छे हैं, तो आपको वो वाली प्रोफाइल मिलेगी। बट व्हेन यू गो टू MNCs, सो MNCs में जो जेनरिक प्रोफाइल्स होते हैं कि UX डिजाइनर हो गया, आपको पूरा प्रोसेस का करना पड़ेगा काम, वो बहुत रेयर है।
until unless you are very much experienced, मतलब at least 2-3 years. UX में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यही है 3-4 साल बस. Okay. जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो तो ट्रेनर्स हैं सारे. तो ट्रेनर बन गए. तो उसमें ये होता है आपको स्पेसिफिक प्रोफाइल मिलती है. बट जब आप अच्छा करते हैं, जब आप अच्छा करने लगते हैं, मतलब व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज 6 मॉड्यूल्स, 6 जॉब प्रोफाइल्स, देन यूएक्स डिजाइनर कम्स अप. ऑलराइट. एंड देन जब आप अच्छा करते हैं तो आप यूएक्स डिजाइनर प्रमोट होते हैं, फिर सीनियर यूएक्स डिजाइनर, देन सीनियर मैनेजर और मे बी डायरेक्टर, एंड देन यूएक्स हेड, एंड देन सीडीओ. देन तो जो हायरार्की वाइज जो ग्रोथ होती है, दैट इज गोइंग टू बी देयर. ऑलराइट. ग्रेट. Amazing. So I think like Abhishek, like we had a lot of like information, and I'm sure like कि जो भी हमारे audiences हैं and like, people who are watching this will watch this in the future, like they'll be really excited to come into UX designing domain and like make a career into it. Yeah, obviously. मतलब कि मैंने तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को, जूनियर्स को, कॉलेज जूनियर्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, मतलब आई डोंट इवन रिमेम्बर द काउंट कि मैंने कितने लोगों को रिकमेंड किया कि गो फॉर द यूएक्स, एंड ऑल आर डूइंग गुड इन देयर करियर, इन देयर लाइफ. एंड ऑब्वियसली कि ये बहुत ही इमर्जिंग चीज है. आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे. राइट. और अभी स्टार्ट ही हुआ है आई थिंक इंडिया. ऑब्वियसली जैसे लोग आईफोन 15 के लिए भाग रहे थे अभी, वैसा जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं वो थोड़ा सा यूएक्स के लिए भाग लेंगे तो उनका भी उससे कम में हो जाएगा आई थिंक. नहीं, ऑब्वियसली इंडिया में इतने महंगे कोर्सेज नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड कोर्स अगर आप करते हैं जो कि लाइव प्रोजेक्ट और जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के साथ में आते हैं, दैट फॉल्स समवेयर बिटवीन 60 to 80,000 के बीच में. तो फाइनली अभिषेक, आई वांटेड टू आस्क कि इंडिया में कितना ग्रोथ है यूएक्स का राइट नाउ, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इनटू द कमिंग इयर्स? लाइक Can you give us इंडिया में रफली कुछ 2014-15 के लगभग आया था यूएक्स, बट अभी तक इतना बूम नहीं कर रहा था. अभी रिसेंटली आई वुड से इन पास्ट 3-4 years, स्पेशली आफ्टर 2018 और मे बी 2019, काफी बूम करने लगा है, क्योंकि अगेन कंपटीशन बढ़ता है तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ भाई यूएक्स भी कोई चीज होती है. पहले ये होता था कि जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपको ही वो बोल देंगे कि आप भी फ्रंट एंड डिजाइन कर दो, बैक एंड की तो कोडिंग आपको करनी है, आप देख लो आपको लाल कलर अच्छा लग रहा है, काला अच्छा लग रहा है, पीला अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है यू पुट दैट देयर, राइट. बट अभी वैसा नहीं होता. अभी देयर इज ए फॉर्मल वे, एंड मतलब ए काइंड ऑफ द होल यूएक्स प्रोसेस इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. So पूरा मतलब you're saying that there are different departments, specific UX departments into the companies. Right? Obviously, in every company, even in today's time, the pre-stage startups, like the non-funded startups which have recently started their operations, they are also hiring UX designers. Right. So finally, Abhishek, what would you like to say to aspirants or young designers who want to make their career into UX design? Like what would be? So basically, Gaurav, see, when you are a fresher, or maybe when somebody just passing out of their college, or even if they are in the college, or maybe have some years of experience in some XYZ domain, मतलब कि there are high chances. जैसे कि मुझे 3rd year में UX का वो वर्कशॉप मिल गया, वो किस्मत थी उस टाइम पे, जो मिले वो मतलब वो बोलते हैं ना जो क्या भागते चोर की लंगोटी काफी, क्या तो बोलते हैं, वो वाली कहानी थी, भागते भूत की लंगोटी काफी. तो वो वाली हालत थी हमारी, हमें तो मिल गया. बट अगर मुझे नहीं मिलता तो आई वुड हैव कंप्लीटेड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आई वुड हैव गिवन इंटरव्यूज इन द प्लेसमेंट ड्राइव, एंड must have got recruited in maybe in Infosys or TCS or some other company at a package of 3-3.25 लाख रुपए. पर धीरे धीरे हर साल 5% की हाइक होती रहती है, और अभी तक मैं कुछ कहीं नहीं पहुंच पाता. मतलब ऐसा होता है इनका, मतलब कुछ कंपनीज में तो, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस और TCS, कि आपका नंबर ऑफ इयर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज्यादा हो जाता है, उतने लाख की सैलरी नहीं होती आपकी एनुअली. इसी से एक चीज है कि व्हाट डू यू सी द वर्क एंड लाइफ बैलेंस इन यूएक्स इन कंपैरिजन टू अदर domains? Right. I'll also tell you that. So मतलब आई वुड सजेस्ट, आज मुझे कितने 8 साल हो गए करीबन यूएक्स में, यूएक्स एजुकेशन में, यूएक्स प्रोजेक्ट्स में,
यूएक्स की मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स ली हैं, बहुत लोगों के जो करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो लिए हैं। एंड मतलब कि एट लास्ट आई वुड सजेस्ट कि यूएक्स इज द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया इन टुडेज टाइम, not even in India, globally also, and it doesn't care from which background you are coming from. So it helps students who are like learning UX here to settle outside of India. Obviously. मेरे एक जूनियर की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरा जूनियर था, वो 2018 में पास आउट हुआ कॉलेज से। 18 में पास आउट होते ही उसने मुझे बोला, सर मैं क्या करूँ? कॉलेज में सर बोलते हैं सीनियर yes. अभी तो बहुत ठीक हो गया कॉलेज। उस टाइम पे बहुत एकदम सीनियरिटी होता था। राइट। तो उसने 2018 में पास आउट किया। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, ही इज बेसिकली फ्रॉम दे आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड ही केम टू मी एंड आस्क्ड मी, सर व्हाट शुड आई डू? मतलब I have recently completed my engineering. कुछ आइडिया नहीं होता obviously, and he was not inclined towards government jobs. But if we talk about North India, so most of the parents, they push their kids to go for government job preparation, but he was not inclined for that. So he came to me and I told him कि भाई तू UX का कोर्स कर ले कोई अच्छा खासा। उसने बोला सर YouTube पे नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। मैंने बोला कि कोई सेंस नहीं है। उस टाइम तो जाता उतना उस टाइम नहीं था, आज थोड़ा बहुत अगर मिल भी जाता है, बट ऑब्वियसली जब उसका UX का एक पूरा प्रोसेस है, हाँ, जब तक आपको पूरा प्रोसेस आपने सीख के उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं किया, तब तक यू आर नॉट रेडी टू गेट हायर्ड एनीवेयर। नोबडी इज गोइंग टू हायर यू। ओके, तो मैंने उसे बोला, 3 महीने का कोर्स था, उसने किया। एट द टाइम ही पेड अराउंड आई गेस 60,000 और मे बी 55,000, नॉट श्योर। एंड देन जैसे ही कंप्लीट किया उसकी जॉब लगी। उसका फर्स्ट पैकेज था 4.5 lakhs का, कंपनीज का नाम। that time it was a very decent package obviously, and now उसका कोई इतना तगड़ा कम्युनिकेशन था ना कुछ था, and 4.5 lakhs का लगा। then he switched his job to another company in 2020 and got promoted somewhere around 12 lakh or 15 lakhs in lockdown, जब लोगों की जॉब जा रही थी तब वो जॉब स्विच कर रहा था नेगोशिएट करके। कंपनी ने मैकबुक दिया, घर पे बैठा, पूरे लॉकडाउन जब तक काम किया। एंड देन इन 2022, इन द स्टार्ट ऑफ 2022, उसको मतलब जैसे अगर आप लिंक्डइन पे देखते हो, खास करके लिंक्डइन, नौकरी का आई एम नॉट श्योर, आई नेवर यूज दैट। लिंक्डइन इज ए काइंड ऑफ वेरी प्रीमियम सोर्स टू सर्च फॉर द जॉब्स। उसने देखा, उसको जॉब मिली। उसके पास में 2 ऑफर आए। एक ऑफर आया, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, यूएस की कंपनी है, एंड दे वर ऑफरिंग हिम 70 lakhs पर ईयर एज ए CTC, 70 लाख रुपए। Amazing. जो कि आप 12 महीने काम करने के बाद भी आपको नहीं मिलता ऑब्वियसली। एंड द अनदर कंपनी वाज फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी। वो उसे ऑफर कर रहे थे समवेयर 56-57 लाख रुपीस, बट somehow he got rejected in the Bangalore one. So he got selected in the Germany one. And then I guess in April or May, not sure, but March, April में इसी जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, उस टाइम पे he shifted to Germany in Berlin, and now he's working there. And his CTC is 57 lakhs, जो लास्ट अपडेट मेरे पास में है। अभी अप्रेजल हो गया हो तो पता नहीं। एंड हर 6 महीने में कंपनी उसको इंडिया आने की और जाने की टिकट्स देती है, और जो भी लोकल वहाँ का ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है, खाना वाना, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। एंड हिज एज इज हार्डली आई गेस 23 इयर्स कुछ होगा। 98 बॉर्न है, कितना होता है ये 23-24 बॉर्न होगा। मतलब 3 से 4 साल में यू कैन, यस ऑब्वियसली। बट वो है कि जैसे अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पूरी शिद्दत से वो पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। एंड नेवर गो फॉर सच कोर्सेज जहाँ पे आपने वीडियो देख लिया, उन्होंने बोल दिया कि यूएक्स ये होता है, वो सिर्फ बता दिया। नेवर सेइंग कि मेंटर्स इंपॉर्टेंट है, करिकुलम इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑब्वियसली मे बी अ गुड डिजाइनिंग स्टूडियो दैट वुड हेल्प। मतलब ये सारी चीजें देखो, डिजाइन स्टूडियो आपको हेल्प करता है कि आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स दे देता है। कुछ लाइव होते हैं, कुछ डमी होते हैं, बट यू गेट टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। सेकंड, मेंटर्स ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको हम कोई ऐसा मेंटर आपको मिल जाए जिसने बीडस कर दिया, बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन कर दिया, फिर वो प्रोफेसर बन गया, वो आपके पास में आ गया,
तो वो वही पढ़ाएगा जो उसने वो पढ़ा है, जो पढ़ा है खुद ने कॉलेज में. But wherein if a mentor is coming from the industry experience, if from the industry with an experience, hands-on experience on multiple projects with multiple clients into different industry segments, then obviously that person is going to give you more, more knowledge and the updated one which is actually happening in the industry, right. All of the tools which are actually there in the industry. And जब कोई ऐसा mentor आपको पढ़ाता है, तो trust me कि since they are working in the industry, so they know all of the latest things of the industry. तो आपको ऐसे वो नहीं, वो चाहिए नहीं होगा कि आपने कब किया होगा, मतलब कि जैसे जॉब. Even in the interviews, like they'll ask you, वो questions पूछेंगे जिन पे वो फंसे हुए हैं. Obviously, ये वो problems आ रही है, right? Obviously, और ये तो बहुत important है. मतलब कि it's not a desk job like a software developer कि आप बैठो, ये कोड है, इसको कोड कर दो, that's it. It's a job like as a UX designer, you enjoy your life, you enjoy your work actually. Trust me on this. The major part of your job role will also be to interact with the clients, to interact with the customers, to understand them, to understand their pain points, to understand their goals, and to resolve their problems, and then update the experience of your product and give them the best experience. So there are a lot of things. So like as a UX designer will be completely, I can say, connected with the product's entire life cycle, you're saying? Like, obviously. Okay. जब तक वो product रहेगा तब तक you will be the person. You will be the person, मतलब कि ऐसा आपने job change कर ली तो ये नहीं है कि वो product बंद हो जाएगा. Obviously, मतलब in industry, if you resign somewhere or you switch your job, so there is a set of process for handover. Okay. Yeah. वो होता है. बट जब तक भी आप जहां भी काम करोगे एज ए यूएक्स डिजाइनर, बहुत सारे यूएक्स डिजाइनर तो मैंने ऐसे देखे जो वर्क फ्रॉम होम पे आज भी मैकबुक दे रखे हैं कंपनीज ने. दिन में 2 घंटे का काम होता है 2 घंटे का, और बाकी वो आराम करते हैं, मस्त फीफा खेलते हैं, चिल करते हैं. राइट. नहीं, ऑब्वियसली किसको नहीं चाहिए वैसी जॉब इफ यू आर क्रिएटिव, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव. नहीं, लोग बहुत, मतलब जो द क्वेश्चन यू आस्क्ड me a few minutes back, the work life balance is literally amazing. अभिषेक, one last thing, एक रिक्वेस्ट है. बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, जानना चाहते हैं यूएक्स के बारे में एंड ऑल, एंड आज मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली. सो आप ऐसा कुछ सेशन ले सकते हो क्या हमारे बच्चों के लिए? आई एम लाइक, आपके पास ऐसे भी अवेलेबिलिटी नहीं है टाइम के, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसा कर सकते हो क्या, एनीथिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स? नहीं, ऑब्वियसली मैंने मतलब मेरे 8 साल के करियर में यूएक्स में मैंने लिए हैं सेशंस, एंड ऑब्वियसली आई एम ओपन टू टेक द सेशंस. थोड़ा सा डिस्कस करके मैनेज कर लेंगे कि कब ले सकते हैं, स्पेशली वीकेंड्स पे पॉसिबल होता है. सो यस, ऑब्वियसली. एंड अभिषेक, अगर कोई आता है हमारे पास फॉर एन इंडिविजुअल सेशन हु वांट्स टू मीट यू, इंटरेक्ट विथ यू, एंड वैसा कोई सेशन आप कर सकते हो क्या हमारे? आई एम वेरी मच ओपन टू टेक सच इंडिविजुअल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल सेशंस आल्सो. मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन अपन सेशन करेंगे या तो उसके बाद में या उससे जस्ट पहले विल प्लान दैट. एब्सोल्युटली. सो मतलब obviously that will be finally I want to, since I am into education and that too into UX. Yes. So yes, अगर कोई इतना अच्छा कोई क्या बोल सकते हैं, कोई enthusiastic person आए जिसको UX करना है करियर में, so yes, I am very much open for that. Great. So thank you so much, Abhishek, for giving your valuable time. Most welcome. I'm more obliged for this. So most welcome. Thank you so much, Gaurav. Thank you. Bye. दोनों हाथ लाना लग. Thank you very much.